she became a household name with Amir Khan star Dangal. But that's not when her journey began. Her journey has been incredibly long. In fact, the Fogart sisters, as they are better known as, have had an exemplary journey, a fight against all odds as a family for themselves. But it's not just about that. Vinesh Fogart has proved her mettle time and again, this time at the Olympics. It's been a jubilation literally for millions of Indians as star wrestler Vinesh Fogart began her dangal quote-unquote in Paris in a very emphatic style. And it's been stunning for many reasons. In fact, let's just look at what's been happening to her in the 2016 Rio edition. You had an excruciating ligament tear that she suffered, surgeries. Eventually, in 2023, you had protests in the streets of the national capital led by several top wrestlers, including Vinesh Fogart, against the then Wrestling Federation of India chief, Brij Bhushan Sharan Singh. So eventually qualifying under some very testing times, proving and quite efficiently staying on with her quota as well amid a lot of national lens. The journey has been incredible but extremely testing, and this only seems to be a beginning for all sorts. Vinesh has kicked off the bout in women's 50 kg freestyle event with a statement win over Japan's legendary grappler and world #1 Yui Sasaki, in fact 4-time Olympic champion. The win was even more special because Yui Sasaki has never been beaten at any international event until now. Well, right after that, the star Indian wrestler outclassed Ukraine's Lavak to enter the semi-finals of the event, beating the three-time Commonwealth Games gold medalist 7-5. And now Cuba's Guzman stands in between Vinesh and a shot at gold in Paris. I'm being joined at this point by Alka Tomar, who's an Indian wrestler who has brought India great medals and laurels, as well as Mr. Mukul, who's a former international wrestler himself. Thank you very much, both of you. Alka Tomar, I believe आप जहाँ पे हैं अभी आप कोचिंग करा रहे हैं. आप इंडियन कोच रेसलिंग विमेन टीम की कोच भी रह चुकी है. आप इंडिया के लिए काफ़ी मेडल्स भी जीत पाए हैं और आप यू आर एट अ प्लेस जहाँ पे अभी रेसलर्स की आप कोचिंग कर रही हैं. आप मुझे ये बताइए, विनेश फोगाट के साथ जो हुआ है, उन्होंने जो आज अचीव किया है, आप उसको कैसे देख रहे हैं? अलका तोमर जी, आप म्यूट पे हैं, आपको अनम्यूट करना पड़ेगा. Alka Tomar ji, अगर आप अनम्यूट कर पाए, okay, let me just go across to Mr. Mukul at this time. हाँ जी, हेलो. Patch Alka Tomar if my team. हाँ जी, बताइए मिस अलका तोमर जी, बताइए, सुन सकते हैं हम आपको, बताइए. नेटवर्क का इशू हो रहा है, मैं जहाँ पर हूँ वहाँ पे नेटवर्क का थोड़ा सा इशू है. तो अभी मैं रेसलिंग की प्रैक्टिस ही करा रही हूँ और रेसलिंग के साथ मेरे को जुड़े हुए 20 साल हो गए, 20-24 साल हो गए मेरे को रेसलिंग से जुड़े हुए. मैं एज ए रेसलर भी रही हूँ, एज ए इंडियन टीम के साथ एज ए कोच भी रही हूँ और विनेश के साथ भी मेरे को कॉमनवेल्थ गेम्स में एज ए कोच मैं उनके साथ गई हूँ. तो आज जो विनेश का जी उसका परफॉर्मेंस मैं मानती हूँ. जिस तरह जो बातें आपने कही, उसके बाद आप इस लेवल पे जाके इस तरह का परफॉर्मेंस देते हैं. आप ओलंपिक की गोल्ड मेडलिस्ट को आपने हरा दिया है और क्वार्टर फाइनल में आपने जिस तरह से ये फाइट निकाली है, क्योंकि ये भी ओलंपिक मेडलिस्ट लड़की थी, तो एक बहुत ही शानदार प्रदर्शन विनेश का रहा है. और जो कल निशा दहिया का भी एक परफॉर्मेंस आपने देखा होगा, उसने लूज कर दी फाइट निशा दहिया ने, लेकिन वो भी काबिले तारीफ है. निशा दहिया ने जिस तरह से प्रदर्शन किया था उस लड़की ने, और वो जीत रही थी, जीतते हुए उसको इंजरी हुई, इंजरी के बाद भी उसने फाइट कंप्लीट की और मतलब उसके चेहरे का जो दर्द था हम सब महसूस कर सकते थे कि उस लड़की के साथ उस पे क्या गुजर रही होगी, क्योंकि जो आप फाइट जीत रहे हैं एक ओलंपिक में, वो फर्स्ट टाइम ओलंपिक में गई और उसके बाद वो क्वार्टर फाइनल की जो फाइट हारी है, तो हम सबको भी बड़ा मलाल है उस चीज का और बहुत दुख है, क्योंकि वो मेडल आ सकता था हमारा. जी
जी, अलका तोमर जी, आप कह रही हैं कि आप वहाँ पे और भी रेसलर्स को अभी कोच कर रही हैं, आप ट्रेन कर रही हैं, आप हमें दिखा पाएंगी वहाँ पे माहौल क्या है? आप अब जब ये मैच चल रहा था विनेश फोगट का, तब भी ये कोचिंग कर रही थी या मैच देख रही थी? नहीं, जब तो मैं मैच देख रही थी तब तो मैं घर पर थी उस टाइम पे। तो उस टाइम पे मैं उस टाइम पे मैं नहीं थी यहाँ पर, क्योंकि उस टाइम पे 5 बजे के बाद हम प्रैक्टिस शुरू करते हैं अपनी। तो इस तरह से ये बच्चे प्रैक्टिस कर जी, रहे हैं। ये बच्चे सब प्रैक्टिस कर रहे हैं। जी। और अब ये आप शाम की अलका फाइट जी, देखेंगे, आप रात की हमें फाइट बता देखेंगे। पाएंगी ये जो जी, ये जो विनेश के साथ विनेश ने जो आज हासिल किया, सब लोग उसके बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन आज सेमीफाइनल्स भी होने वाला है आज रात को। वो कैसी प्रिपेयर्ड लग रही हैं आपको विनेश? आई मीन उन्होंने फाइनली एक जो 4 टाइम ओलंपिक की विनर रही हैं, उनको उन्होंने हरा दिया। अब वो सेमीफाइनल्स पहुंच गए हैं। कैसा लग रहा है आपको? आई मीन क्या लग रहा है? उनकी प्रिपरेशंस तो काफी काबिले तारीफ लग रही हैं। मेरे देश को बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए, काबिले तारीफ है, जिसका गोल्ड मेडल था आपने उसको हरा दिया है, और सामने आपकी अब सेमीफाइनल फाइट है। तो उसको तो वो मेरे ख्याल से टेक्निकल फॉल कर देगी या बाई फॉल कर देगी विनेश, और उसके बाद फाइनल में जाएगी। जो फाइनल की दूसरे ग्रुप की जो लड़कियां आएगी मंगोलिया और चाइना में से, उसके साथ उसकी फाइट चलेगी, और मैं तो मानती हूँ वो गोल्ड मेडल आज लेगी, कल लेगी। कल उसका फाइनल रहेगा विनेश का, तो मुझे लगता है विनेश गोल्ड मेडल लेगी। मुझे पूरी उम्मीद है। अलका जी, एक थोड़ा सा सेंसिटिव सवाल पूछ रही हूँ, बिकॉज आप एक कोच भी हैं, एक रेसलर, महिला कोच रेसलर है, आप महिलाओं को वहां पे, महिला रेसलर्स को आप कोच कर रही हैं, और विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और भी कई इंडिया के टॉप रेसलर्स, काफी उन्होंने प्रोटेस्ट किए स्ट्रीट्स पे। ये सारी जो रेसलर्स अभी कोच कर रही हैं आप, वो इन सबको कैसे देखती हैं? आई मीन उसके उसके बावजूद ये हासिल करना मेंटली कितना स्ट्रेंथ दिखाता है, कितना ट्रेनिंग और कितना स्ट्रेंथ पे फोकस किया गया है। जो रेसलर होते हैं वो बहुत ज्यादा स्ट्रोंग होते हैं, और विनेश से ज्यादा मेंटली स्ट्रोंग और प्रिपेयर इस टाइम पे मुझे कोई रेसलर नहीं लग रहा है। जिस तरह से जो आपने बताया विवाद रहा था उस टाइम पे, उसके बाद आप पीक पे आते हो, उसके बाद आप ओलंपिक मेडलिस्ट को हराते हो, उसके बाद आप अपना क्वार्टर फाइनल इतने इजी तरीके से जीत जाते हो। तो एक आपकी मेंटलिटी, आपकी प्रिपरेशन, जो एक आग है ओलंपिक मेडल की, वो दिखाती है इस चीज को, कि आपने कितनी लगन से, कितनी मेहनत से आपने प्रैक्टिस की अपनी। क्योंकि इस लेवल पे पहुंचना बहुत बड़ी बात है, इस लेवल पे आपको जीतना बहुत बड़ी बात है। इस लेवल के लिए आपने कितनी मेहनत की होगी, कितना प्रिपरेशन आपने किया होगा, वो मैं समझ सकती हूँ बिल्कुल। बहुत अच्छे से। अलका जी, मुझे पता नहीं आप ये कर पाएंगी कि नहीं। अलका जी, एक रिक्वेस्ट है, नहीं होगा तो अब समझ आता है, हम आपके साथ आगे बढ़ते रहेंगे, लेकिन आपके आसपास जो महिला रेसलर्स हैं जो ट्रेन कर रही हैं, आप उनसे पूछना चाहेंगे कि वो विनेश का ये जो अचीवमेंट है वो कैसे देखती हैं? आप कर पाए, आप पूछना चाहेंगे उनसे? अरे परी, इधर आओ। विनेश विनेश जैसे फाइट जीते तो मैं कैसा लग रहा, कैसी लगी, बताओ। दिनेश जी की मैं देखी थी पूरी लाइव, तो वो जो सोसाइटी के साथ हुई थी तो बहुत अच्छी थी। लास्ट का जो 10 सेकंड बाद 10 सेकंड में उन्होंने पॉइंट लिए थे, वो बहुत ही वो पुश करके वो बहुत ही तगड़ा था। बहुत अच्छा लगा। उससे क्या क्या तुम्हें मतलब लगता है कि भाई हमें भी इस तरह की कुश्ती करनी चाहिए, हमें भी इस तरह का जोश, इतनी अच्छी प्रैक्टिस हमें भी करनी चाहिए? हाँ? क्या सीखने को मिला आपको? उससे मतलब कि ये सीखने को मिला, बहुत साल एक बार जब तक प्रैक्टिस करी बहुत अच्छी। जी, अलका ये जी, कह रही कि एक हमें लास्ट क्वेश्चन मोटिवेट, आपसे। अलका जी, आपको क्या लगता है, क्या मेडल लेके आएंगे विनेश हमारे लिए? गोल्ड मेडल लेकर आएगी मैडम, गोल्ड। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, जी जी, बिल्कुल। इनफैक्ट अलका जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपने हमारे साथ बहुत समय निकाला, बहुत बात की। हम भी आपके साथ जुड़े हुए हैं, एक गोल्ड की आशा है और विश्वास करते हैं कि विनेश फोगाट वो हमारे लिए लेके आएगी। बट नॉनदलेस जो भी उन्होंने किया, बहुत हासिल किया। मिस्टर मुकुल भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मिस्टर मुकुल, आपने देखा अलका तोमर हमारे साथ लगी हुई थी, शी वाज टॉकिंग टू अस ऑल दिस वाइल। मिस्टर मुकुल, how do you look at what's unfolded in Paris with Vinesh Fogart? It's
beyond brilliant. Of course, she's not got the medal yet. Nonetheless, her victory is historic. नेहा जी, पहले तो मैं जो विनेश फोगाट को सलाम करता हूं। और वो जो शेरनी लड़की है, जितनी मेहनत वो कर सकती है। हमने देखा पिछले 1.25 महीने से मैं जंतर मंतर पर रहा हूं, मैं खूब टीवी पे भी गया हूं। मैंने वहां भी उसके साथ बहुत, जो लोग आज बोल रहे हैं उस टाइम उनके साथ कोई खड़ा। आपने देखा होगा, क्योंकि जब आदमी जीतता है ना, तो अभी तो मंत्री भी आएंगे, वे के नाम सिस्टम से तो हार गई विनेश, लेकिन वर्ल्ड में जो देश के लिए जो उन्होंने नाम किया है, इतनी इंजरी होने के बाद रोड पे के नाम है उनको घसीटा गया जंतर मंतर पे। उनके साथ पिछले ओलंपिक में बहुत ज्यादती हुई, यहाँ तक कि वो मतलब आत्महत्या के लिए भी अपनी कोशिश कर चुकी थी एक बार। ये तो मेडल, बहुत सारे मेडल हमारे जो सिस्टम ने खो दिए पिछली फेडरेशन ने। अगर ये फेडरेशन ऐसा नहीं करती तो वहां बजरंग भी जाता, वहां साक्षी मलिक भी जाती और विनेश भी जाती। अभी विनेश गई है, अपने दम पे गई है, घुटने की इंजरी कराई, इतनी मेहनत की। फिर यहाँ कई लोगों ने बोला कि ये तो जूनियर लड़की से ही हार जाएगी, इसमें तो दम ही नहीं है, ये तो बिल्कुल कुश्ती खत्म होगी है। लेकिन आज पूरे देश को फक्र है, उस लड़की के लिए सलाम है। सब लोग वे भी आएंगे बधाई देने जो आदमी वहां पर नहीं थे। सर मुकुल जी, आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। आपने बहुत हम बिल्कुल मेडल के हम बिल्कुल मेडल के एज में हैं। मैं कंट्रोवर्सी नहीं लाना चाहती, पर आपने 2 वाक्य यूज किए हैं। आपने बोला सिस्टम से हार गई। आप क्यों बोल रहे हैं सिस्टम से हार गई है? वो सिस्टम से हारी नहीं है, वो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही है, इंडिया ने उसको सेलेक्ट किया है, वो पेरिस ओलंपिक्स में इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही है, वो कोई प्राइवेट पार्टी की तरफ से नहीं गई है, वो इंडिया की शान है, इंडिया ने उसे वहां भेजा है। आप क्यों बोल रहे हैं कि सिस्टम ने उसे फेल किया? मैं नेहा जी इसलिए कह रहा हूं कि जब वहां जंतर मंतर पे इसी लड़की को घसीटा गया था, तो उस सिस्टम की बात कर रहा हूं मैं। फिर ये अपने दम पे ट्रायल देकर जब बाहर गई है, तो पहले लोग बोलते कि ये डायरेक्ट जाना चाहते हैं, डायरेक्ट ओलंपिक में जाना चाहते हैं, ये सब बातें घुमाई गई थी। ठीक है ना। हम तो आप अभी से ही इनका मेडल मान रहे हैं, जब 1 नंबर की रेसलर को इन्होंने, आज तक वो लड़की किसी से हारी नहीं है, 4 बार वर्ल्ड के नाम चैंपियन है, पिछली बार ओलंपिक में मेडल था, आज तक किसी से नहीं हारी वो लड़की। और दूसरे वाली लड़की भी जो क्वार्टर फाइनल में हारी है, वो भी 1 नंबर की लड़की थी, वो भी उन्होंने के नाम हराया। आगे तो मैं समझता हूँ वॉकओवर है, वो मतलब 10 सेकंड में, 5 सेकंड में, या वॉकओवर 10-0 से बाहर करेगी, हमें पता है, मेडल हमारा पक्का है। लेकिन के नाम गोल्ड, अब की बार विनेश गोल्ड लेकर आएगी, आप देख लेना, सभी को जवाब मिल जाएगा। जो वे कहते थे लोग, उनको सबको पता लग जाएगा कि कुश्ती को कौन खत्म कर रहा था और कुश्ती को कौन उठा रहा था। ये लड़की बहुत ही ज्यादा जुझारू है, ये लड़ने वाली लड़की है, ये लगा लो, इसके अंदर बहुत गट्स हैं, बहुत आगे तक। पिछले भी मेडल 2-3 खो दिए हैं इसी बातों के लिए, लेकिन ये लड़की बहुत मेहनती है, हमें पता है, बहुत आगे जाएगी, इसका गोल्ड पक्का आएगा। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, आपसे बात करके मिस्टर मुकुल। बहुत शुक्रिया हमारे साथ समय निकालने के लिए। आप जो कह रहे हैं हम भी वही मानते हैं। एक ही साथ हम सब लोगों की दुआ बस एक ही है कि विनेश फोगाट हमारे लिए, अपने लिए और देश के लिए गोल्ड लेके आए, गोल्ड लेके जीते। उससे बड़ी बात कोई नहीं होगी। और ऑफ कोर्स उसकी विक्ट्री यहाँ तक भी अगर देखी जाए बहुत बहुत बड़ी है, बहुत मायने रखती है, बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेजिंग देती है। पर हम उम्मीद करते हैं कि उसकी विक्ट्री यहीं पे नहीं रुकेगी, बाकायदा आगे बढ़ती रहेगी। बहुत शुक्रिया हमारे साथ मुकुल जी जुड़ने के लिए।